cranial cavity, abdominal cavity, pelvic cavity. हेलो एवरीवन, ओडिशा नर्सिंग ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी के कैविटीज के बारे में। तो कैविटीज हमारे बॉडी का वो स्पेसेस है जहाँ पे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सबको रहने के लिए जगह मिल जाता है। एंड दिस कैविटीज नॉट ओनली प्रोवाइड स्पेसेस एंड प्रोटेक्शन टू दिस डेलिकेट ऑर्गन बट ऑल्सो अलाउज देयर मूवमेंट एंड चेंजेस इन शेप्स। और अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर 4 मेजर कैविटीज फाउंड इन आवर बॉडी: cranial cavity, thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. तो cranial cavity के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। So the cranial cavity is the space inside the skull जिसको हम लोग बोलते हैं intracranial space. Cranial cavity is otherwise known as intracranial space. So the space inside the skull is known as the cranial cavity and it is formed by the 8 cranial bone. 8 cranial bone helps to form cranial cavity and it is occupied by the brain. नेक्स्ट आता है आपका थोरासिक कैविटी। सो द स्पेस इनसाइड द चेस्ट इज नोन एज द थोरासिक कैविटी। इसको हम लोग चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। एंड दिस कैविटी इज फॉर्म एंटीरियरली बाय द स्टेर्नम, laterally by the ribs and posteriorly by the vertebral column. Along with this bony structure, this cavity is also formed by intercostal cartilage and intercostal muscles of chest. And it is occupied by heart, lungs, esophagus, trachea, blood vessels and nerves. And one more important thing is there is a part in the thoracic cavity which is known as the mediastinum. So mediastinum is the space between the two lungs. So the space between the two lungs is known as the mediastinum. And it is divided into two parts: superior mediastinum and inferior mediastinum. Superior mediastinum has esophagus, trachea and blood vessels, and inferior mediastinum is occupied by heart. So thoracic cavity has mediastinum and it is divided into two parts: superior mediastinum, inferior mediastinum. Inferior mediastinum is occupied by the heart. And the inferior part of the thoracic cavity is formed by a muscular structure, dome-shaped muscular structure called diaphragm. And this structure separates thoracic cavity from the abdominal cavity. Next हम लोग पढ़ेंगे abdominal cavity के बारे में. So the abdominal cavity is the space inside the abdomen which is formed anteriorly by the muscles of abdomen. Anteriorly and laterally it is formed by the muscles of abdominal wall and posteriorly it is formed by vertebral column. And this cavity is occupied by large intestine, small intestine, liver, gallbladder, spleens and kidneys. And this cavity has 9 regions. For clinical significance, this cavity is divided into 9 regions and 4 quadrants, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका pelvic cavity. So the pelvic cavity is the space inside the pelvic bone which is formed anteriorly and laterally by the pelvic bone. The pelvic cavity is formed anteriorly and laterally by the pelvic bone to pelvic bone, and posteriorly it is formed by sacrum and coccyx, and inferiorly it is formed by the muscles of pelvic floor. Unlike thoracic cavity and abdominal cavity, there is no physical structure to separate abdominal cavity from the pelvic cavity. इसीलिए कहीं कहीं पे pelvic cavity और abdominal cavity को एक ही cavity consider किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं abdominopelvic cavity, लेकिन हम लोग यहाँ पे separately पढ़ेंगे अलग से abdominal cavity और pelvic cavity. So the pelvic cavity is occupied by organs of reproductive system, urinary bladder, ureter, sigmoid colon and rectum. The 9 regions of abdominal cavity. तो जैसे कि मैंने कहा कि abdominal cavity is divided into 9 regions.
तो ये जो नेमिंग किया गया है उनकी पोजीशंस के हिसाब से किया गया है। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि राइट इलियाक फोसा। तो राइट इलियाक फोसा का नेमिंग कैसे हुआ है, जो हम लोग का हिप बोन है, कमर एरिया में जो हिप बोन है उसका जो इलियम है उसी के हिसाब से ये इसको नाम दिया गया इलियक रीजन। तो राइट साइड के एरिया को हम लोग बोलेंगे राइट इलियाक फोसा, एंड लेफ्ट साइड के रीजन को बोलेंगे लेफ्ट इलियक फोसा। और हम लोग को पता है कि ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग ग्रॉइड रीजन भी बोलते हैं, इसीलिए दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज इंग्विनल रीजन। इंग्विनल रीजन भी कहा जाता है। सो अकॉर्डिंगली साइड वाइज ये आपका राइट इंग्विनल रीजन एंड ये लेफ्ट इंग्विनल रीजन। उसी के हिसाब से जो अम्बिलिकल एरिया है, अम्बिलिकस के नाभल के अराउंड जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे अम्बिलिकल रीजन, और लुम्बर यानी कि कमर के एरिया को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट लुम्बर रीजन, लेफ्ट साइड वाला को, और राइट एरिया को, राइट साइड का लुम्बर एरिया को बोलेंगे राइट लुम्बर रीजन। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ स्टमक के हिसाब से नेमिंग किया गया है एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो बिलो अम्बिलिकल एरिया को बोला जाएगा एपिगैस्ट्रिक सॉरी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, एंड एबव अम्बिलिकल एरिया को बोला जाएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन। और ये जो इस साइड में जो एरिया है हम लोग का रिब्स, जो रिब्स है, रिब्स जो स्टेरनम के साथ अटैच्ड हुआ है, कैसे कार्टिलेज के थ्रू स्टेरनम के साथ रिब्स हमारे अटैच्ड होते हैं। तो कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम कहते हैं। तो उसी के हिसाब से इसको कॉन्ड्रियाक एरिया बोला जाता है, यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो बिलो जो हम लोग का कार्टिलेज है, रिब्स का जो कार्टिलेज के पार्ट जो कार्टिलेज के बिलो ये एरिया है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। हाइपो मींस बिलो एंड एपी मींस एबव। एबव द जो भी एरिया है वो एबव पार्ट को हम लोग एपी बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम लोग हाइपो बोलते हैं। सो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो अगर एब्डोमेन का जो अगर हम लोग 3 पार्ट में कंसीडर करेंगे तो ये हो गया अपर एब्डोमेन, और ये हो गया आपका मिडिल एब्डोमेन, और ये पार्ट हो गया लोअर एब्डोमेन। सो अपर एब्डोमेन हैज राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। मिडिल एब्डोमेन हैज राइट लुम्बर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लुम्बर रीजन। और लोअर एब्डोमेन है आपका राइट इलियाक फोसा, जिसको हम लोग इंग्विनल रीजन भी बोल सकते हैं, राइट इंग्विनल रीजन, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियाक फोसा और लेफ्ट इंग्विनल रीजन। सो दीज आर ऑल अबाउट द 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। इसका सिग्निफिकेंस है हम लोग का क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, जैसे हम लोग का एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं तो उसी के रीजन के हिसाब से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि व्हिच पार्ट ऑफ द ऑर्गन इज अफेक्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेंट्स, एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो एब्डोमिनल कैविटी को नाभल के बीच में से डिवाइड किया गया है एनाटॉमिक माने क्लिनिकली 4 चैम्बर से। तो ये हो गया आपका राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट lower quadrant. So these are all about cavities of human body, 9 regions and 4 quadrant of abdomen. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।